ان اولیاءہ الا المتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صاحب انا اعطیناک الکوثر، جو ہیں کونین میں سب سے بہتر و برتر، رب کے حبیب حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے اراکین جلسہ، ڈاکٹر صاحب، ان کے جملہ رفقا کہ یہ عظیم الشان اجلاس نہایت کامیابیوں کی منزلوں کو طے کرتا ہوا اس مقام تک پہنچا۔ سرکار مفتی اعظم ہند یوں مدسرا ہوتے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا میرے دل کی بے کلی غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ سر اور آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ آج ہم اور آپ اس عظیم الشان بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بہت اچھی تقریریں آپ نے سماعت کی، بہت اچھی نعتیں اور منقبتیں آپ نے سماعت کی۔ ہندوستان کا وہ عظیم شاعر، پورے ہندوستان میں منفرد لب و لہجے کا وہ عظیم شاعر ہے۔ پڑھتا ہے تو لگتا ہے ادب کی سرزمین سے کوئی کھلنے والا گلاب مسکرا رہا ہے، ورنہ شاعروں کی آج کل کمی نہیں ہے۔ شاعری سے زیادہ ان کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، لیکن ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جس امام نے ہمیں یہ درس دیا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ اے بیٹا، اے بابو، بچہ، اے بچہ، جانا ہے گھر، جاؤ، چلے جاؤ۔ ایسے بھی جو 1,00,000 روپے کا ڈاکٹر صاحب نے لڈو بنوایا ہے، وہ تو آپ ہی لوگوں کو لے کر جانا ہے، لیکن اس سے قیمتی سامان علماء کرام آپ کو دے رہے ہیں، تو لڈو کھا پی کر کے ختم ہو جائے گا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس خاکے گدی پر مبعوث فرمایا۔ پھر جب ہمارے نبی آخری پیغمبر کی شکل میں دنیا میں آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔
اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب ان کی جگہ پر کون آئیں گے؟ اولیاء آئیں گے۔ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بزرگوں کی زندگی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں مناتے ہیں ہم جشن غوث الورا؟ کیوں سرکار غوث اعظم کی سیرت کو زمانے کو سناتے ہیں؟ کیوں بزرگوں کی یاد کو ہم دلوں میں بساتے ہیں؟ جس قوم نے بزرگوں کو بھلا دیا، آج سعودیہ عربیہ میں یہودیوں کے کردار کو زندہ کر رہی ہے۔ جن لوگوں نے ابو بکر صدیق کی صداقت کو پڑھنا چھوڑ دیا، جنہوں نے آقا کریم کی ولادت کی محفلوں کو سجانا بند کر دیا، آج وہ عیش و عشرت کی محفلیں سعودیہ عربیہ میں سجا رہی ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے بہت پہلے کہا، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ صاحبوں، اس لیے اپنی نسلوں کو یوں ہی اللہ والوں کا ذکر سنیے بھی اور سنائیے بھی، اپنی اولادوں تک اللہ والوں کا پیغام پہنچائیے۔ زمانے میں کون کیا کہتا ہے، کہنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب مل گئے، کہا مولانا صاحب سنی لوگ شرک بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک شرک بتا دیجیے۔ کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد میں سلام پڑھنا شرک ہے۔ میں نے کہا اچھا مسجد میں سلام پڑھنا شرک ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا جی حضرت پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ایک وقت بھی نہیں چھوٹتی؟ کہا نہیں چھوٹتی۔ میں نے کہا تحیات پڑھتے ہیں؟ کہا پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا سنائیے۔ پڑھنا شروع کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین۔ میں نے کہا ٹھہریے، آپ بتائیے ذرا سا اس کا ترجمہ بھی کیجئے۔ ترجمہ جب شروع کیا پہنچے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، والسلام علینا ہم سب پر سلام ہو، والسلام علی عباد اللہ الصالحین اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں سب پر سلام ہو۔ میں نے کہا آپ بتائیے یہ سلام آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں یا نماز کے باہر پڑھتے ہیں؟ کہا مولانا صاحب آپ بریلوی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی نماز ہے، جب مسجد کے اندر سلام پڑھنا شرک ہے تو پھر نماز کے اندر سلام پڑھنا شرک کیسے نہیں ہوگا؟ پوچھو یہ نماز ہے، ہم تو سجدہ کرنے آئے ہیں، ہم تو بندگی کرنے آئے ہیں۔ اے مالک و مولا یہ سجدہ تیرے لیے ہے، یہ قیام تیرے لیے ہے، یہ رکوع تیرے لیے ہے، یہ سجود تیرے لیے ہے، یہ تسبیح تیرے لیے ہے، یہ تحلیل تیرے لیے ہے۔ مگر نماز میں نبی اور آل نبی پر درود، نماز میں نبی پر سلام، نماز میں اپنوں پر سلام، نماز میں جتنے اولیاء ہوئے، جتنے اولیاء ہیں، جتنے اولیاء ہوں گے سب پر سلام۔ تو رب قدیر کا اشارہ ہو رہا ہے بندو سمجھو میں نے طریقہ بتا دیا ہے، میں نے سلیقہ بتا دیا ہے۔ بندگی کرنے والوں سجدہ کرنا مگر میرے ولیوں کو بھول نہ جانا، سجدہ کرنا مگر میرے محبوب کو بھول نہ جانا۔ جس رب کو بغیر سلام والی نماز پسند نہیں ہے اس رب کو بغیر سلام والا بندہ کب پسند ہوگا؟ اس لیے کل سے نہ کہنا صاحب یہ نیک بندے ہیں کون جن پہ اللہ پانچوں وقت نماز میں سلام پڑھوا رہا ہے، چاہے وہ حرم کی مسجد ہو، چاہے وہ مدینے کی مسجد ہو، چاہے وہ مسجد اقصی ہو، چاہے وہ آپ کی بستی کی مسجد ہو، چاہے کسی فرقے کا مولوی نماز پڑھتا ہو، جب نماز پڑھے گا تب تک سلام پڑھنا کمپلسری ہے، جب نماز پڑھے گا تب تک
तहज्जुद पढ़ेगा और तहज्जुद में सलाम पढ़ेगा। अब जो ही सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन का तज़किरा हुआ, ज़माने ने समझ लिया ये सालिहीन है कौन? अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत मौला अली है, हजरत इमाम हसन मुस्तफा है, हजरत इमाम हुसैन है। दुनिया वालों यही तो सच्चे सरकार गौसे आजम है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। साहबो आगे बढ़ो, बढ़कर देखते चले जाओ, सैयदी सरकार आला हजरत है। कल से न कहना वलियों का तज़किरा कहाँ है, जहाँ सजदा है वहीं पे वलियों का तज़किरा है, वहीं पे नबी और आले नबी पे दुरूद है, वहीं पे नबी और आले नबी पर सलाम भी है। कल से न कहना कि गौस कहाँ मिलेंगे, ख्वाजा कहाँ मिलेंगे। कल से न कहना रब्बे कदीर ने बंदों को ये तरीका दे दिया, सजदा करना तो भी इन्हें न छोड़ना और इनके दामन को पकड़ लेना। तो जिंदगी में कभी सजदे को न छोड़ना, जिंदगी में कभी कयाम को न छोड़ना, जिंदगी में कभी रुकू और सुजूद को न छोड़ना। जाहिर सी बात है समाज में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो नमाजें तो पढ़ते हैं मगर वलियों से प्यार नहीं करते, एक वो जो वलियों से प्यार करते हैं मगर मस्जिदों का रुख नहीं करते। साहिबों दोनों गलत है। अगर वलियों से प्यार है तो नमाजें पढ़ो, वलियों से प्यार है सजदे करो, वलियों से प्यार है कयाम के लिए खड़े हो जाओ। और अगर तुम नमाजी हो तो नमाज के अंदर भी सलाम पढ़ने वाले बन जाओ, नमाज के बाहर भी सलाम पढ़ने वाले बन जाओ। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान साहब क्यों। इसलिए कल से ये न कहना सलाम कहाँ है, जहाँ नमाज है वहाँ सलाम है। कल से न कहना गौस का तज़किरा कहाँ है, जहाँ सजदा है उसी नमाज में गौस का तज़किरा है, उसी नमाज में ख्वाजा का तज़किरा है। साहिबों इसे समझने की ज़रूरत है। लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूँगा इन औलियाए किराम के आने का मकसद क्या है। इन औलियाए किराम के आने का मकसद ये है समाज में बदलाव हो, उनकी ज़िंदगी को देखकर लोगों की जिंदगी में इनकलाब आए, ये अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाए, बिगड़े हुए माशरे को अच्छा बनाए, बिगड़े हुए समाज को अच्छा बनाए, बिगड़े हुए माहौल को अच्छा बनाने के लिए औलियाए किराम तशरीफ लाते हैं। यही वजह है हिंदुस्तान में अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा, बगदाद में अल्लाह ने हजरत सरकार गौसे आजम को भेजा। ऐसे ही हर खित्ते के लिए अल्लाह ने वलियों की जमात लगा दी। कहीं मखदूम अशरफ है, कहीं सरकारे देवा है, कहीं मखदूम कालपी है, कहीं मखदूम मानहरा है। तो बरेली की भारत की सरजमी पर इस्लाम फैलाने के लिए अल्लाह ने मोइनुद्दीन को भेजा और ईमान बचाने के लिए बरेली में इमाम अहमद रजा को भेजा। अल्लाह ने इंतजाम फरमा दिया। ये वलियों की टोली है जो इस्लाम फैलाते भी है, इस्लाम बचाते भी है। इसलिए जब जब नमाज होगी इस्लाम फैलाने वालों की भी याद आएगी, इस्लाम बचाने वालों की भी याद आएगी। इसे खूब याद रखेंगे। इन अल्लाह वालों ने काम क्या किया है, आओ जरा सा हम और आप सुनते चले, जरा सा दिलो दिमाग को ठीक करते चले। साहिबों आज हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। कौन क्या कहता है इसे छोड़िए, अपनी ही मट्टी पे चलने का तरीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आज जमाना संगे मरमर को देख रहा है। लोग ताजमहल की बातें कर रहे हैं, जमाना चार मीनार की बातें कर रहा है। मुसलमान आज तू अपने वजूद को तलाश कर, मुसलमान आज तू अपने किरदार को तलाश कर, ऐ मुसलमान आज तू अपनी जिंदगी को तलाश कर। तेरे शबो रोज कहाँ गुजर रहे हैं, तेरी जिंदगी में क्या है। हम जिस बड़े पीर दस्तगीर की याद में बैठे हैं, साहिबों ये किस चमन के गुलाब है, उन्होंने कौन सा काम किया। डॉक्टर साहब कहेंगे सुल्तान रजा मेरे गौस की शान ये है, 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। मौलाना मेरे गौस की शान ये है, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे चाहने वाले फिक्र न करना, तो दुनिया के किसी कोने में पुकारेगा मैं तेरे
तेरी मदद को पहुंच जाऊंगा। लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहता है, आप बताओ ईमानदारी से, इस गौस को किस माँ ने जन्म दिया? इस गौस की तरबियत किस माँ ने की? इस गौस का नूर किस बाप की पेशानी में चमका? इस गौस के आने की बशारत किसने दी? साहब ये कौन है? हजरत हसन अशकरी, जिन्होंने सरकार गौसे आजम के आने की बशारत और जिनके लिए खिरक़े खिलाफत बहुत पहले अता कर दिया। अभी गौस आए नहीं है, आने वाले हैं, लेकिन जरा सुनना, प्यार से सुनना। सारी दुनिया कहती है, आज का तरक्की याफ्ता जमाना कहता है, बच्चा 3 साल का होता है तो पढ़ने के लायक होता है, 4 साल का होता है तो एडमिशन कराया जाता है, बच्चा ये पढ़ने के लायक हो गया है। मगर इस्लाम कहता है, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की पेट से लेकर कब्र की पेट तक, माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। साहब इस्लाम का ये दावा है, आमिना के लाल ने इसका ऐलान किया है। लेकिन आओ जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किसी बच्चे को माँ के पेट में पढ़ते देखा है? आज सारी दुनिया चैलेंज में मुब्तला है। आज टीवी की वादी में बैठकर बेहया और बेशर्म लोग इस्लाम की अजमत पे हमला आवर है। कोई कहता है इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है, कोई कहता है इस्लाम का फला कानून औरतों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस्लाम किसी के बाप दादा के बनाए हुए मजहब का नाम नहीं है, इस्लाम अल्लाह के पसंदीदा मजहब का नाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक किसी इंजीनियर को इस्लाम पसंद हो या ना हो, किसी डॉक्टर को इस्लाम पसंद हो या ना हो, किसी प्रोफेसर को इस्लाम पसंद हो या ना हो, किसी जाकिर नाइक जैसे मौलवी को इस्लामी लिबास पसंद हो या ना हो, लेकिन रब्बे कदीर को अगर पसंद है तो मजहब इस्लाम पसंद है। मालिक को मौला को पसंद है तो मजहब इस्लाम पसंद है। खूब गौर से सुनिएगा साहिबों, आज उस इस्लाम पे कीचड़ उछालने के लिए मीडिया में बैठकर दिन रात डिबेट किया जाता है। इस्लाम औरतों पे जुल्म की बात करता है, इस्लाम औरतों को नौकर चाकर और गुलाम बना करके रख दिया है। मैंने कहा कैसी गुलामी भाई, इस्लाम ने कैसे गुलाम बना दिया? कहा मौलाना साहब, अगर इस्लाम में औरतों पे जुल्म नहीं तो क्या है? बेटी है तो माँ बाप की खिदमत करे, बीवी है तो शौहर की खिदमत करे, अगर माँ है तो बच्चों की खिदमत करे। एक औरत की जिंदगी पूरी जिंदगी नौकरानी की हैसियत से गुजर जाती है। औरतें अपने आप को तकलीफ महसूस करती है, हम मर्द के बगैर बाहर नहीं निकल सकते, हम मर्द के बगैर कहीं नहीं जा सकते। सुल्तान रजा कहना चाहता है, अच्छा ऐसी बात है, इस्लाम ने औरतों पे जुल्म कर दिया है, यानी बेटे की खिदमत करना जुल्म है, माँ बाप की खिदमत करना जुल्म है, शौहर के लिए रोटियां बना देना जुल्म है। तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जुल्म की दास्तान लिखने वाले, अगर एक बेटी मैका में है तो माँ बाप और 2-4 भाइयों के लिए खाना बना देती होगी, अगर किसी की बीवी है तो शौहर और बच्चों के लिए खाना बना देती होगी, माँ है तो 2-4-5-10 अफराद की खिदमत कर देती होगी। लेकिन आओ मैं तुम्हें वहां लेकर जाना चाहता हूँ जहां पे एक लड़की मैट्रिक करने के बाद नहीं, इंटर बीए करने के बाद जाती है। आप में कितने लोग होंगे जिन्होंने प्लेन का सफर किया होगा, जहाज का सफर किया होगा? यूं ही जहाज में डॉक्टर साहब कदम रखते हैं, साहब फौरन एयर होस्टेज खड़ी है, वेलकम स्वागतम करके सीट तक पहुंचा दिया। साहब उसके जिस्म पर कपड़ा है और कपड़े पे एक बैच लगा होता है, लिखा रहता है पावर गर्ल्स। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं, सबसे शक्तिशाली लड़कियां हैं, तरक्की याफ्ता दौर की लड़कियां हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दुनिया की तरक्की याफ्ता दौर की लड़कियां हैं, लेकिन इनका काम क्या है? डॉक्टर साहब मुस्कुरा पड़े। 4 लड़कियां हैं, 150 यात्री प्लेन में सवार है। अब जो बटन दबाएगा पानी लेकर आना है, जो कॉल करेगा चाय लेकर के आना है, जो बटन दबाएगा आकर उसकी खिदमत करनी है। अब ये 4 लड़कियां 150 यात्रियों को प्लेन में पानी पिलाए, कोई गुलामी नहीं है, खाना खिलाए, कोई गुलामी नहीं है, खिदमत
खिदमत करे, कोई गुलामी नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहता है, आज हमारी बेटी पढ़कर अगर शौहर के लिए 2 रोटियां बना दे तो हम कहते हैं गुलामी हो गई। और बीए एमए करके 4 लड़कियां 150 यात्रियों को जिस्म की नुमाइश के साथ खाना खिलाए और पिलाए, साहब इसमें कोई गुलामी नहीं, ये तरक्की याफ्ता दौर है। गुलामी तो ये है कि ये 4 लड़कियां 150 यात्रियों को खाना खिला रही है, गुलामी इसका नाम है, गुलामी की जंजीर इसका नाम है। साहिबों याद रखना, ये मगरिबी तहजीब और तमद्दुन है जिसने तुझे तालीम के नाम पे घर से निकाला, प्लेन की दुनिया में पहुंचाया और यात्रियों की खिदमत करने वाला नौकर बना दिया, मगर बड़ी मोहब्बत से लिख दिया पावर गर्ल्स, सबसे शक्तिशाली महिलाएं हो। यानी इस्लाम के दामन को छोड़कर अगर बेटियां चली गई तो इन्हें एयर होस्टेज बनाया जाएगा, इन्हें कार गर्ल्स बनाया जाएगा, इन्हें मॉडल गर्ल्स बनाया जाएगा। लेकिन इस्लाम के दामन में आ तो 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने औरतों को रुतबा अता किया। बेटी आई तो नबी ने रहमत बना दिया है, बीवी आई तो आमिना के लाल ने मोहब्बत बना दिया है, बहन आई तो उसे इज्जत बना दिया है, और माँ बन गई तो उसके कदमों में नबी ने जन्नत बिछा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, शौहर की खिदमत को ऐब न समझना, इसे खातून ने जन्नत की सुन्नत समझना। माँ बाप की खिदमत को ऐब न समझना, इसे खातून ने जन्नत की सुन्नत समझना। बच्चों की परवरिश को ऐब न समझना, इसे खातून ने जन्नत की सुन्नत समझना। आज जमाना चैलेंज कर रहा है, मेरा भी चैलेंज है, दुनिया की तमाम पढ़ी लिखी महिलाओं को मेरा चैलेंज है, वो चाहे इंजीनियर हो, वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे प्रोफेसर हो। सुल्तान रजा उन औरतों को चैलेंज करता है, तुम इस्लाम पे उंगलियां उठाती हो तो सुल्तान रजा तुझे चैलेंज करता है, हिम्मत है तो अगर तुम इंजीनियर हो तो पेट ही से एक ऐसे बच्चे को जन्म दो जो पेट में ही इंजीनियर बन जाए, एक ऐसे बच्चे को जन्म दो जो पेट में ही डॉक्टर बन जाए, ऐसे बच्चे को जन्म दो जो पेट में ही इंग्लिश बोलने वाला बन जाए, मैथ का जानकार बन जाए। तुम कहोगी मौलाना ऐसा नहीं हो सकता, बच्चा 9 माह पेट में पलता है, फिर उसकी पैदाइश होती है, उसके बाद बच्चा 3-4 साल का होता है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना सीखता है, 20-22 साल का होता है, कॉलेज स्कूल में पढ़ता है, फिर जाकर इंजीनियर बनता है, फिर जाकर डॉक्टर बनता है, फिर जाकर प्रोफेसर बनता है। इस्लाम से मुकाबला करने वाली आज की समाज की बेटियों, लेकिन तुझे पता नहीं जिस गौस की महफिल में बैठी हो, इनकी वालिदा सैयदा खातूने जन्नत की खादिमा हजरत फातिमा उम्मुल खैर ने बड़े पीर दस्तगीर को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में 18 पारा का हाफिज़े कुरान पढ़ने वाला। नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। अच्छा साहब, कितने पारा का हाफिज़े कुरान बने? जरा दोनों हाथों उठाकर बोले कितने पारा का, और जरा थोड़ी आवाज ऊंची आनी चाहिए, कितने पारा का? 18 पारा का। अब जरा गौर से सुनिएगा, ए मेरी माओ, तुम कहती हो कि तुम कुछ नहीं बना सकती, गौर से सुनना, तुम चाह दो तो समाज बदल जाए, तुम चाह दो तो माशरा बदल जाए, तुम दुआएं कर दो तो तेरे बेटे की तकदीर बदल जाए, तू दुआ कर दे तो तेरे शौहर की जिंदगी में इंकलाब आ जाए, तू दुआ कर दे और तू संवर जाए तो ये समाज और माशरा संवर जाए। साहिबों, मैं पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम की माँ ने अपने बच्चे को पेट में कैसे हाफिज़े कुरान बना दिया? पूछो सरकार बड़े पीर दस्तगीर से। जब मदरसे में पढ़ने के लिए गए, उस्ताद ने पूछा, शहजादे ये बताओ तुमने ये 18 पारे कहाँ पढ़े, किस मदरसे में पढ़े, किस मौलवी साहब की बारगाह में पढ़े? मेरे पीर दस्तगीर मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, उस्ताद गिरामी
मैं इसे किसी मदरसे से पढ़ करके नहीं आया, किसी खानकाह और दारुल उलूम से पढ़कर नहीं आया। तो कहा फिर कहां से पढ़कर आए? कहा हुजूर मैं माँ के पेट में था और मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी, मैंने उसे सुनकर के याद कर लिया है। यही वजह है आज मेडिकल साइंस भी कहती है माँ का किरदार का असर बच्चों की जिंदगी पर पड़ता है, बाप की जिंदगी का असर बच्चों की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए माँ बाप नेक हो तो इंशाअल्लाह औलादे भी नेक होंगी। लेकिन हम तो ये समझते हैं हम शराबी बने रहे हमारी औलादे नेक हो जाए, हम जुआरी बने रहे हमारा समाज नेक हो जाए, हम नाचने वाले गाने वाले बने रहे हमारा माशरा नेक हो जाए। लेकिन आज ये सुल्तान रजा इसी के इर्द गिर्द गुफ्तगू करेगा, जरा गौर से सुनना। तैयार है? अरे तैयार है? जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या हबीब अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। याद रखिएगा साहब, आज के इस पुरफितन दौर पुरआशुक माहौल में जहां हम जी रहे हैं, समाज को बदलने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। बच्चों की जिंदगी और लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए हमें खुद अपने लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। ये कौन है सरकार? ये कौन है? हजरत अबू सालेह सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी है साहब। मुजाहिदे का आलम ये है, 3-3 दिन तक भूखे रहते, खुदा की इबादत में लगे रहते, नफ्स से जंग करते, नफ्स से जंग करते। साहिबों असल जंग तो नफ्स से है। आज हमारा दिखावा और है, मुत्तकी कहलाना सब चाहते हैं लेकिन अमल करना कोई नहीं चाहता है। आज जरूरत है अमल करने की। ये फेसबुक की वाली, ये व्हाट्सएप की दुनिया, ये तो 4 काबे की तस्वीरों वाली सेल्फी कहीं हमारे हज को न बर्बाद कर दे, कहीं हमारे उम्रे को न बर्बाद कर दे, कहीं हमारी नमाजों को न बर्बाद कर दे, कहीं हमारी खिदमत को न बर्बाद कर दे। ऐ मुसलमान तू कहां जी रहा है? तू तो इफ्तार पार्टी करता है, सेल्फी लेकर डाल देता है। तू तो उम्रा करने जाता है, काबे के सामने तस्वीरें लेकर के डाल देता है। तू तो सफा मरवा की सही करता है, तस्वीरें डाल देता है ताकि जमाना तुझे मुत्तकी कहे, जमाना तुझे परहेजगार कहे। लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहता है गौसे आजम ने कितनी सेल्फियां डाली थी, गौसे आजम ने कितनी तस्वीरें अपलोड की थी, गौसे आजम ने कितनी तस्वीरें ली थी, लेकिन बता गौसे ऐसी भी मोहब्बत तूने देखी है? गौस आए नहीं है तो भी उनकी मोहब्बत का ऐलान हो रहा है, गौस आ गए तो भी उनकी मोहब्बत का ऐलान हो रहा है। और मेरे गौस आज बगदाद में है फिर भी हिंदुस्तान में उनकी मोहब्बत का ऐलान हो रहा है। मोहब्बत क्या ये सेल्फी वाली मोहब्बत थी? साहिबो नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसे याद रखिएगा। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने ये दस दिया, करूँ मद है अहले दुवल्लज़ा, पड़े इस बला में मिली बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। सरकार गौसे आजम के वालिद है, तकवा परहेजगारी के पहाड़ है, महीनों महीनों भूखे रह जाते। एक दिन भूख का आलम ये दरिया किनारे टहल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भूख लगी है, एक सेब दरिया की सतह पे बढ़ता चला आ रहा है, सेब को उठाया खा लिया, भूख खत्म हुई। अब एहसास होता है मैंने सेब तो खा लिया मगर ये सेब किसका था पता नहीं। और से सुनिएगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, आप इसे दिल में जगह दीजिएगा। साहिबों या तो आप मुझ तक पहुंच जाइए या मैं आप तक पहुंच जाऊं। अल्लाह अल्लाह एक सेब ही का तो सवाल है साहब, लेकिन आओ जरा देखो उस मर्दे मुजाहिद को, सरकार गौसे आजम के वालिद को। कहा सेब खा तो लिया मगर ये सेब मेरा नहीं था, न जाने ये सेब किसका था। अब दरिया किनारे सेब के मालिक की तलाश में निकल पड़े। बुरा न मानना मेरी बात को, हम तो कुछ भी खाते हैं, कभी नहीं सोचते कि ये खाना आया कहां से है, ये खाना है कैसा। हजरत जुनैद बगदादी से बायजीद बुस्तामी ने पूछा, जुनैद खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर खाना सामने हो बिस्मिल्लाह पढ़ूं, खाने का छोटा छोटा लुकमा करके खाऊं, अगर मुख्तलिफ किस्म का खाना हो तो चारों तरफ से, नहीं तो सामने से खाऊं, खा करके
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। कहा हजरत बायजीद बुस्तामी ने, जुनैद खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम, वलायत के तेरे चर्चे हो रहे हैं। जुनैद बगदादी अर्ज़ होते हैं, ऐ मेरे आका आप इतना तो बताएं कि खाना खाने का तरीका क्या है। कहा जुनैद खाना खाने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, दस्तरखान बिछाने से पहले, खाना खाने से पहले, दस्तरखान लगाने से पहले ये देख लेना ये खाना हलाल का है या हराम का है, ये रोटियां हलाल की है या हराम की है। मेरी बात को बुरा न मानना, आज भारत में VIP वलीमा खाने वाले ईमानदारी से बताओ, वलीमा की पार्टियों में जाते हो, जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, जैसे इस्लाम में ज़ना करना हराम है, जैसे इस्लाम में सूद का पैसा खाना हराम है, जैसे इस्लाम में रिश्वत का पैसा खाना हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज में पैसा मांग कर लेना भी हराम है। बहुत हाथ उठाकर बोले जहेज में पैसा मांग कर लेना, और जोर से बोले लेना हराम है, और जोर से बोले लेना हराम है। चाचा आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, क्या बात है? हाथ उठाया कीजिए, नस्लों को बताया कीजिए। बेटा जैसे शराब नहीं पीना, वैसे ही जिंदगी में कभी जहेज नहीं मांगना। आप ईमानदारी से बताओ, जहेज मांगना इस्लाम में हराम है, लेकिन आप वलीमा खाने जाते हो, कहते हो मौलाना जहांगीर साहब क्या पेप्सी कोको कोला पिलाया है, क्या चिकन चिल्ली और बिरयानी है, क्या बेहतरीन डिश बनाया है। अरे मुफ्ती साहब किबला, ऐसा वलीमा तो मैंने पूरे गोंडा जिला में नहीं देखा था, क्या VIP वलीमा था। अरे वो वलीमा खाने वाले जरा पूछ भी तो लेता कि कहीं ये जहेज के पैसे का तो वलीमा नहीं था। बहुत रोशनी डाली है माशाअल्लाह, जिंदाबाद पूछ जिंदाबाद। तो लेते, मुकम्मल रोशनी डाली। कभी पूछ तो लेते कि जहेज के पैसे का तो वलीमा नहीं था। गौस यूं ही गौस नहीं बने, बेशक गौस यूं ही गौस नहीं बने। हम हराम का वलीमा भी खा ले और सोचे हमारा बेटा अल्लाह का वली भी हो जाए। पूछो 10 लाख जहेज मांगने वाले, अल्लाह के नबी ने तो सरकार मौलाए कायनात से कहा, अली फातिमा को महर देने के लिए कुछ है, महर की तैयारी करो। आज का नौजवान महर की तैयारी नहीं करता, ये नौजवान बारात ले जाने की तैयारी करता है, ये तो दूल्हा बनने की तैयारी करता है, ये तो वलीमा की तैयारी करता है। एक नौजवान से मैंने पूछा, निकाह करने जा रहे हो, महर की तैयारी की है? कहा तो महर किसको कहते हैं? क्योंकि कभी बाप ने बताया नहीं, कभी माँ ने बताया नहीं कि बेटे निकाह में पहले महर की जरूरत है। मैंने कहा बेटा निकाह के बाद सबसे पहले महर की अदायगी है। कहा हजरत अब्बा बोल रहे थे कि जो तुम्हारे ससुराल से जहेज मिलेगा उसी से बारात भी हो जाएगा, उसी से वलीमा भी हो जाएगा, उसी से महर भी दे देना। मैंने कहा जिसकी बुनियाद हराम पे रखोगे बता तेरी जिंदगी में इनकलाब कैसे आएगा। अब्बा से पूछना जहेज मांगना हराम है या हलाल है। इस्लाम के शहजादों याद रखना, आज तुमने कितना मजबूर कर दिया कौम की बेटियों को, तुमने कितना बोझ बना दिया कौम की बेटियों को। आज तुम कहते हो मेरी बहुएं वफादार नहीं है, आज तुम कहते हो मेरी बीवियां वफादार नहीं है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, शादी के बाद वलीमा की पार्टी करते हो ससुराल से मिले हुए पैसे से, उसके बाद बीवी को सामने बैठा के सेल्फी लेते हो, तस्वीर डालते हो फेसबुक पर और लिखते हो आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बीवी ने पूछा जालिम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो? कहा हाँ मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मौलाना साहब से तकरीर तूने नहीं सुनी, तू भी मुझसे मोहब्बत कर। उसने कहा हाँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो फिर मेरे बाप की जमीन किसने बेचवा दी, मेरे भाई की कमाई किसने खत्म करा दी, मेरी माँ के जेवरात किसने बेचवा दिए, मेरी टोली उठने से पहले मेरे बाप के आंखों में आंसुओं
आंसुओं के कतरात किसकी वजह से आए? सुल्तान रजा आज के नौजवानों से पूछना चाहता है, ईमानदारी से बता, तेरी बीवी जो सपना घर बार, पूरा समाज, बचपन की जिंदगी, पूरा घर बार, माँ बाप को सिर्फ छोड़कर इसलिए आती है कि वो तेरे निकाह में आ चुकी है, अपना सब कुछ औरत छोड़ सकती है, क्या तुम जिंदगी में उसकी मोहब्बत में जहेज नहीं छोड़ सकते हो? अरे बोलो ईमानदारी, क्या जहेज नहीं छोड़ सकते हो? ईमानदारी से बताओ, जरा सोचो, जिस लड़की ने डोली उठने से पहले बाप की आंखों में आंसुओं के कतरात देखे हो, सोचो, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने निकाह के बाद कहा, आका जी ये मेरी दौलत भी आपकी है और मैं भी आपकी हूँ। ईमानदारी से बताना नौजवानों, आज शादी के बाद कोई लड़की कहती है कि मैं भी आपकी हूँ और मेरी दौलत भी आपकी है? क्यों? जानती है डॉक्टर साहब कि जो जालिम 50,000 रुपए के लिए मेरे बाप के आंखों में आंसू ला सकता है, जो जालिम एक स्कॉर्पियो के लिए मेरी माँ के जेवरात को गिरवी रखवा सकता है, जो जालिम अपाची और बुलेट मोटरसाइकिल के लिए मेरे बाप की जमीन बेचवा सकता है, अगर मैंने पूरे जेवर का मालिक उसको बना दिया तो कल रात को बेचकर ये भाग भी सकता है। ये भरोसे तुमने तोड़े हैं, ये भरोसे हमने तोड़े हैं, मगर मैदाने करबला में सरकार गौसे आजम के जद्दे आला, जिंदाबाद जिंदाबाद, जद्दे आला हजरत इमामे हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने जमाने को पैगाम दिया कि ये औलादे जहेज के नाम पर बेचने के लिए नहीं मिली है, इस्लाम के नाम पर करबला में औमा मोहम्मद की तरह कुर्बान करने के लिए मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब किबला, सुभान अल्लाह। इसलिए सुल्तान रज़ा नौजवानों से कहेगा, अपने बाप से कहना, ए मेरे बाप सुन लो, मैं तेरा बेटा हूँ, तूने मुझे डॉक्टर बनाया है, तूने मुझे इंजीनियर बनाया है, तूने मुझे आलिम बनाया है, तूने मुझे मौलाना बनाया है, तूने मुझे एसी मैकेनिक बनाया है, लेकिन मेरे बाप तू मेरे ससुराल में मेरा सौदा न करना, मेरे बाप तू ससुराल वालों के हाथों हमें गिरवी न रखना, मेरे बाप सूखी रोटी हम खाएंगे, लेकिन मेरे बाप कभी मेरे नाम पर मेरे ससुराल में जहेज न मांगना। तेरा बाप कहेगा बारात का इंतजाम कहाँ से होगा, कहना मस्जिद में निकाह कर लूंगा। तेरा बाप कहेगा वलीमा कहाँ से होगा, तो कहना हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद एक प्याले दूध से वलीमा किया है। मैं 1 करोड़ लोगों को वलीमे में नहीं बुलाऊंगा, डॉक्टर साहब को बुला लूंगा, इमाम साहब को बुला लूंगा और आका की सुन्नत पे अमल करते हुए 1 प्याले दूध से वलीमा कर लूंगा, लेकिन अपनी गुर्बती का सौदा नहीं करूंगा, अपने जमीन का सौदा नहीं करूंगा। अब्बा जान मैं कमाऊंगा, आपको भी खिलाऊंगा और अपनी औलादों और बीवी और बच्चों को भी खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह अपनी शादियों में जहेज नहीं लेंगे? कोई नौजवान है जरा हाथ उठाए तो कितने नौजवान हैं जो जहेज नहीं लेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतने नौजवान नहीं लेंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याद रखना तुमने बड़े पीर दस्तगीर की महफिल में हाथ उठाई है साहब, याद रखना ये जलसे। भाईजान खैरियत से है? भाईजान खैरियत से है? अच्छा, ये नौजवान बेचारा डर से नहीं न जा रहा है, बेचारा तेरे अब्बा को तलाशने जा रहा होगा। पूछो चले कि अब्बा बोलिए मेरे बारे में क्या ख्याल है। नौजवानों अपने ज़मीर को बदलो, अपने किरदार को बदलो। ये हंसने की बात नहीं, समाज के लिए रोने की बात है कि आज हमारी वजह से लाखों बेटियां रो रही हैं, उनके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं। बुरा ना मानिएगा, आज गैर ये तहरीक चला रहे हैं
کہ مسلم بیٹیوں سے تم یہ کہو کہ تمہارا تو مسلمان جہیز لے کر شادی کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھاگ چل، ہم ایک پیسہ نہیں لیں گے۔ مدد کے نام پر ایموشنل بیک میلنگ بھارت میں کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے کردار کو گروی رکھ دیا، آپ نے اپنے کریکٹر کو گروی رکھ دیا، آپ بھول گئے کہ ہم بھی کسی کو رات کی تنہائی میں مدد کرنے والے تھے۔ صاحبوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، کھانے سے پہلے حلال دیکھنا ہے۔ ایک ہی سیب تو کھایا تھا، آج تو نہ جانے کتنے ٹھیلے پر آپ سیب کھا جاتے ہیں، کتنے چنے اٹھا کر کھا جاتے ہیں۔ میں نے ایک ہوٹل میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا، ڈیوٹی جاتا تھا تو میں نے جانا بند کر دیا۔ ہوٹل کا مالک میرا بڑا قریبی تھا۔ ایک دن میں رات کو آ رہا کہا، حضرت میں نے نیا مکان لیا ہے، ذرا قدم رکھ دیں۔ میں گیا تو اس نے کہا، حضرت ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ کہا حضرت اب ہوٹل پہ آپ آتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اس لیے نہیں آتا ہوں کہ نوجوان محلے کے آتے ہیں، جس کی طبیعت کرتی ہے تمہاری تھالی میں سے اٹھا کے کھا لیتے۔ کہا حضرت یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا معلوم ہے بغیر اجازت کے کھانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے پھر جھوٹا کر دیا تو پھر اور لوگوں کا کیا مسئلہ بنے گا؟ نوجوانوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں کبھی کبھی بڑی ہو جاتی ہیں، انہیں خوب یاد رکھنا۔ ولیمے کی پارٹیوں میں جانا، بارات میں جانا، وی آئی پی ناشتہ ملے نا تو کبھی سوچنا کہ یہ وی آئی پی ناشتہ کسی غریب نے زمین بیچ کر تو نہیں کرائی ہے۔ بارات میں جانا، کھانے سے پہلے سوچنا یہ مٹن اور یہ بریانی کسی ماں کے زیور بک کر تو نہیں بنے ہیں۔ اور اس میں مصیبت یہ کہ صاحب اب تو لوگ جانوروں اور انسانوں میں فرق بھی بھول گئے ہیں۔ جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان دسترخوان پہ بیٹھ کر کھاتا ہے اور جانور کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ اگر وہی کام ہم بھی کریں، اگر اسی کا نام ترقی ہے کہ ہم ترقی کر کے جانور کے مقابلے میں چلے جائیں تو تمہیں تمہاری ترقی مبارک ہو۔ ہمیں تو آمنہ کے لال کی سنت چاہیے، ہمیں تو آمنہ کے لال کی سنت چاہیے۔ اس لیے نوجوانوں، آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ۔ کسی شادی بیاہ میں جانا، بفر سسٹم ہونا تو کھانا لے کر وہیں نیچے بیٹھ جانا۔ کیا وہیں نیچے؟ ذرا غور سے سننا۔ حضرت سلمان فارسی کا نام سنا آپ؟ ارے بولیے، سلمان فارسی کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ سلمان فارسی اسلام کی تلاش میں کتنے دنوں سے تھے۔ آقا سے ملاقات ہوئی تو ایک دن صدقہ لے کر گئے، کہا حضور یہ صدقہ ہے، دیکھنا چاہتے تھے۔ آقا نے غریب صحابہ کو دے دیا، کہا کھا لو۔ دوسرے دن تحفہ لے کر گئے، آقا نے خود بھی کھایا، سب کو کھلایا۔ سلمان فارسی اسلام قبول کیے، یہودیوں کی ایک مجلس میں گئے، سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، سلمان فارسی بھی کھانا کھا رہے تھے۔ کچھ روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا دسترخوان پر تو سلمان فارسی نے اسے اٹھایا۔ سنیے گا غور، کیا کیا؟ اسے اٹھایا۔ ان کے ساتھی جو غیر تھے انہوں نے کہا سلمان کیا کر رہے ہو؟ ہم دوسرے ملک میں آئے ہیں، یہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھاؤ گے، لوگ کہیں گے کہ یہ عیب ہے، یہ کیسا انسان ہے جو گرے ہوئے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے۔ سلمان فارسی نے کہا ارے اسے کہنے دے، اس ظالم کے کہنے کی وجہ سے میں کبھی اپنے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے مسلمان تو کیسا ہو گیا؟ بارات بھی تیری ہے، بارات جس کے گھر گئی وہ بھی مسلمان ہے، جو بارات لے کر گیا وہ بھی مسلمان ہے، جو کھانا بنوا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ نکاح کرنا آقا کی سنت ہے، اور اس سنت بھاری محفل کو تو نے کھڑے کھڑے کھانا کھا کر اور کھلا کر جانوروں کی محفل بنا دیا۔ اس لیے سلطان رضا تجھ سے گزارش کرتا ہے آج ہی توبہ کرو اور آج کے اس جلسے سے وعدے کر کے جاؤ، ہم کھانا کھائیں گے مگر جانوروں کے طریقے سے نہیں، آمنہ کے لال کی
सुन्नत के मुताबिक खाना खाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोलिए इंशाअल्लाह। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कभी खड़े खड़े खाना नहीं खाएंगे? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे नौजवान याद रखना, कभी खड़े खड़े खाना न खाना, कभी खड़े खड़े खाना न खाना। याद रखना, कभी साहब उसके तरफ जाना भी नहीं। जमाना कुछ भी कहे, हमें करनी है शहनशाहे फतह की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह।